میں نے اشتہار پڑھا جو وائرل ہوا یوٹیوب پر یا فیس بک یا واٹس ایپ پر، تو اس میں لکھا تھا بنت فاطمہ الزہرا آل رسول مرحومہ سیدہ امی جان۔ تو میں نے غور کیا کہ جو بھی آل رسول ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی ادا ضرور ہوتی ہے۔ میں غور کرتا رہا کہ امی جان کے اندر حضور کی کون سی ادا تھی، تو مجھے حضور کی سیرت میں ایک حدیث ملی جو غالباً جنگ خیبر کا واقعہ ہے۔ جنگ خیبر میں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب پڑاؤ ڈالا میدان میں، تو اس وقت ایک چرواہا آیا، اور وہ چرواہا ایسا تھا جس کے ہونٹ موٹے تھے، بال پراگندہ تھے، کپڑے پھٹے تھے، اور بہت ہی ایک غریب اور لاچار چرواہا تھا۔ اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب وہ خیبر کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ یہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے، تو کسی سے پوچھا کہ یہ بھیڑ کیسی ہے، تو بتایا گیا کہ یہ مسلمانوں کا پڑاؤ ہے جس میں ان کے کمانڈر بھی ہیں۔ قریب ہوا، جب قریب آیا تو لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے آقا اور تمہارے کمانڈر کیا یہاں پر موجود ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ ہاں ہمارے آقا اندر خیمے میں تشریف فرما۔ اس نے سوچا کہ خیمے کے اندر کوئی ٹھاٹ باٹ ہوگی، کوئی پروٹوکول ہوگا۔ اس نے کوشش کی کہ ہم ان سے ملاقات کریں۔ آخرکار وہ مجمع کو کنارے کرتا ہوا اور میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ جب وہ وہاں پہنچا تو پہنچ کر کے سلام عرض کیا اپنے الفاظ میں جو اس کے ہاں ہوتا تھا۔ اس کے بعد کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اے لوگو، خدا ایک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور تم لوگ بھی اس کو ایک مانو، اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اس چیز کی میں تبلیغ کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں یہ کلمہ پڑھ لوں تو میرا انجام کیا ہوگا، مجھے کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم یہ کلمہ پڑھ لو اور مجھ پر ایمان لے آؤ تو تمہیں جنت ملے گی۔ تو اس نے کہا حضور پھر کلمہ پڑھا دیا۔ حضور نے اس کو کلمہ پڑھایا۔ جب وہ کلمہ پڑھ لیا تو اس کے ساتھ کافی بکریاں تھیں۔ اس نے کہا حضور یہ بکریاں دوسروں کی امانت ہیں، کیا کیا جائے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کچھ کنکریاں دی، فرمایا یہ کنکریاں پھینک دو اور بکریاں جس کی ملکیت کی ہوں گی وہ اپنے گھروں کو واپس چلی جائے گی۔ ابھی تک وہ شخص ایمان نہیں لایا تھا، تب تک کوئی بھی شخص اس کے حکم کو فالو نہیں کرتا، حتیٰ کہ کوئی اس کے پاس جاتا بھی نہیں، مگر جب وہ ایمان کے شرف سے مشرف ہوا تو وہ کنکریاں پھینکتا ہے، بکریاں اس کے حکم کو فالو کرتا ہے۔ یہ قابل غور بات ہے۔
जब उसने कंकरियां फेंकी तो फिर वो बकरियां अपने मालिक के पास वापस चली गई। उसके बाद उसने कहा या रसूलल्लाह अब मैं क्या करूं? तो हुजूर ने फरमाया नमाज का वक्त भी नहीं है कि मैं तुम्हें नमाज पढ़ाऊं और रोजे के अय्याम भी नहीं है कि मैं तुमसे रोजा रखवाऊं और कोई इबादत का वक्त नहीं है। हाँ, एक इबादत है, वो है तलवार की छाप। क्या है? तलवार की छाप। सो अगर तुम जिहाद करना है अल्लाह के राह में तो जिहाद के लिए तैयार हो जाओ। उसने कहा हुजूर मैं तैयार हूं। उसने एक सवाल किया, कहा या रसूलल्लाह अगर मैं जिहाद करूं तो दो सूरत बनेगी। नंबर एक, या तो गाजी बनूंगा और या तो शहीद बनूंगा। या रसूलल्लाह अगर मैं शहीद रहूं तो फिर क्या आप मेरी जमानत लेंगे? तो हुजूर ने फरमाया हाँ, अगर तुम जामे शहादत नोश करते हो तो मैं तुम्हारे जन्नत की जमानत लूंगा। उस शख्स ने तलवार ली और जंग पर चला गया, शहीद हो गया। शहीद हो करके जब सहाबा शहीदों की लाशों को देख रहे थे तो हुजूर करीब गए और कहा कि सब लोगों को पता लगा लिया कौन कहाँ है? तो उसने कहा हुजूर एक शख्स ऐसा है जिसकी तफ्तीश कोई कर नहीं पा रहा है कि ये कौन है। हुजूर करीब गए और जब करीब गए तो फिर आपने देखा क्या फरमाया, क्या तुम इसको नहीं जानते? ये वो शख्स है जिसने कोई नमाज नहीं पढ़ी, कोई रोजा नहीं रखा, दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं किया जो अल्लाह के यहाँ इबादत में शुमार हो, मगर मैं जमानत देता हूँ कि ये जन्नती है। जब इस हदीस को मैं पढ़ा तो फिर मैं गौर किया तो इससे एक बात निकल के सामने आई और वो ये है कि अम्मी जान हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई कैसा भी शख्स आए और किसी हाल का वो शख्स अम्मी के यहाँ अजनबी नहीं महसूस करता। कोई कैसा भी, कोई भी औरत हो और कितनी भी वो गुर्बत का शिकार हो, कितनी भी दूर की हो, जिससे भी अम्मी जी बात करती थी उसको लगता था कि ये तो हमको बहुत गहरे से जानते हैं। मेरे आका आज हमारा और आपका प्रोटोकॉल ये है कि अगर हम आलिम बन गए, हम पीर का लड़का बन गए या पीर बन गए तो फिर हमसे मिलने के लिए लोगों को इनविटेशन और बाकायदा पूछताछ और तारीख लेनी पड़ती है। मगर कुर्बान जाओ मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जब उनके पास एक मोटे होठ वाला कोई चरवाहा भी आता है तो बताते खुद मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपने गले लगाते। यही सिफत मेरे आका की अम्मी जी के अंदर कूट के भरी थी। मुझसे कई लोगों ने बल्कि हत्ता की एक दो औरतों ने भी बताया कि अम्मी जी हमको बहुत चाहते थे और बताते खुद मैं फोन से अम्मी जी से बात किया क्योंकि मेरा खाना अम्मी जी के हाथों रहा करता था। तो जब कभी भाभी चली जाया करती थी इलाहाबाद या कहीं तो अम्मी जी खाना बनाते वक्त मेरे पास फोन करती थी कि आज क्या बनाए, क्योंकि उनको कुछ बीमारियां थी तो वो सादा खाना पसंद करती थी, लेकिन उनको ख्याल रहता था कि हम रोजाना तो सादा खाते हैं, मौलाना साहब कहीं ऐसा ना हो कि दिल में ये लिए हो कि अम्मी जो खाती है वही हमको खिलाती है। इसलिए वो फोन करती थी और कहती थी वहाँ साहब हमको तो ये बीमारी है और हमको डॉक्टर मना किया है, क्या आपके लिए बना दूं ये? तो मैं कहता था अम्मी वही चीज मुझे भी खाना है। और कभी भी मैंने अम्मी से खाने के लिए शिकायत नहीं की, बल्कि एक दो लोगों से अम्मी ने कहा कि पूछो मौलाना साहब को खाना पसंद आता है या नहीं आता। अल्लाह अकबर। फिर उस वक्त आज मैं जब ये बात याद करता हूँ तो मुझे हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की झलक अम्मी जी के अंदर मौजूद मिलती है। वाकई में जो भी बंदा अम्मी जी से मुलाकात करता था उसको लगता था कि वाकई में अम्मी जी को बहुत मानती है। ये है सादाते किराम के अंदर उनके आबा व अजदाद की अलामत और उनकी पहचान। सैयद होने की कोई गारंटी सर्टिफिकेट कार्ड नहीं होता, पहचान बताती है कि ये सैयद है। नारे तकबीर, नारे रसूल, नारे रिसालत, खानदान अहले बैत। कौन सी सर्टिफिकेट कोई
कोई छप करके बनी है, नहीं है। जितने भी उलमाए किराम आए हैं, जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, सारी किताबों में अलामात बताती हैं, खुसूसियात बताती हैं कि ये हाँ ये सादात में होती है, सखावत होती है, फला होता है, फला होता है, फला होता है, ये होता है। तो मैंने तलाश किया, उनमें मौजूद थे। अल्लाह तबारक तआला उनके कब्र अनवर पर रहमत व अनवार की बारिश अता फरमाए। मैं जिस इसारे सवाब की महफिल है, एक मैं थोड़ा सा इस पर मैं गुफ्तगू कर दूं क्योंकि मैं उन्वान के तहत गुफ्तगू करता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स को मौत के सकरात यानी मौत की सख्ती से बचना है वो 3 काम करता रहे। बहुत ही तफसीली बात है लेकिन इसको बिल्कुल मुख्तसर में बयान करता हूँ। 3 काम कौन है? सबसे पहला काम ये है, अगर जो चाहता है कि मुझे मौत की सख्ती से अल्लाह महफूज करे, तो पहला काम ये है कि वो गरीबों से नफरत न करे। क्या? गरीबों से नफरत न करे। और यही चीज अम्मी के अंदर कूट कूट के भरी थी, कैसा भी हो। और दूसरा, हुजूर ने फरमाया कि अगर कोई शख्स चाहता है कि उसे मौत की सख्ती ना आए तो वालिदैन की खिदमत किया करें। क्या? वालिदैन की खिदमत किया करें। तारीख गवाह है, सैयद साहब किबला बैठे हैं, सैयद आदिल मियां साहब किबला से सुना है कि चुनार शरीफ में अम्मी जी की बेलौस थी अपने परिवार वालों, इनके वालिदैन के लिए। और उसके बाद हुजूर ने फरमाया कि अगर कोई चाहता है कि मुझे मौत की सख्ती ना आए, आखिरी बात आका ने इरशाद फरमाया कि जब तुम किसी मजदूर को रखो मजदूरी करने के लिए, तो जितने रेट में मजदूर तय हुआ है मजदूरी के बाद जब उसका काम खत्म हो तो उतना ही रेट दो। बाद में ये न कहो कि ये तुमने काम ऐसा नहीं किया इसलिए रेट कम हो जाएगा। ये 3 बातें आप अपने दामन में रख करके लेके जाएं, इंशाअल्लाह आप मौत की सख्ती से महफूज रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सकरातुल मौत से महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि।